So hi guys, welcome to the next video everyone, in which we'll be talking about different human right laws. The conventions which are pretty major in respect to human rights are UDHR, ICCPR, ICESCR and ECHR. Right. So these are certain PYQs of UPSC law optional. Apart from that, we'll firstly read the background. So human rights are inalienable, universal and indivisible rights. Pretty basic, but pretty important. Inherent to all humans by virtue of humanity alone. By virtue of humanity alone. It's very important to understand that. In 19th century itself, there was growing recognition of slavery and piracy as violations of basic rights. 20th century में था interwar period. There was a growing attempt by the law of nations to protect and promote certain rights through organizations like the Temporary Slavery Commission and the International Labour Organization, ILO, right? Then in the post-war era, the UN was established, and under that, Article 1 of the UN Charter itself recognizes encouraging respect for human rights as one of its fundamental responsibilities. UN and human rights, first thing. Apart from that, I think it is very important to understand one more thing. I'll add a page, blank page. Yes. So there are 4 or 3 generations of human rights basically, right? आप इस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हैं. 4 generations है. 4 generations of human rights. Right. First is blue rights, also known as blue rights. In it, right, there are rights enshrined under the UDHR, ICCPR and ECHR. It is the European one, the ICC is the international one, and this is the universal one, right? ECHR. Then second is the second generation of human rights. These rights are fundamentally eco plus social plus political rights. ICESCR comes under this generation. The second generation's rights are also called as red rights. Right. That is one thing. Basically, they are socio-cultural in nature. Third, we have our third generation rights, and they are beyond civil and social rights. They touch upon aspects such as environment. Right. The third generation rights are collectively called as green rights. Or collective rights. Fourth one we have is those rights which deal with digital rights of individuals. डिजिटली भी यार अब ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया, स्पेशली पोस्ट AI. ह्यूमन राइट्स प्लस AI प्लस टेक, दैट इज़ द थिंग, राइट. ये नॉन डेरोगेबल होती हैं नेचर में, ठीक है, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है. एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी लिखवा रखा है 3 जनरेशंस. ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का जो पॉइंट आता है ना, वो इन्वायरमेंट हो जाती हैं.
राइट. फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकेंड इज सोशो कल्चरल एंड थर्ड इज इन रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. चलिए यूएन पे आते हैं हम. यूएन के कौन से प्रोविजंस हैं. प्रीएम्बल में बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू रीअफर्म द फेथ इन फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है यूएन की. इंटर एलिया एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जीए की आर्टिकल 13 में लिखा गया है. 55 में वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूएन इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, ये भी लिखा गया है. वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूएन इकोसॉक भी लिखे गए हैं. द टू इंटरेटेड ऑब्लिगेशंस अंडर आर्टिकल 55C. यूएन शैल प्रमोट रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 56 में क्या लिखा गया है. प्लेज बाय मेंबर स्टेट्स to take joint and separate action towards achievement of the purpose set out in Article 55 लिखा गया. Right. Human rights and domestic jurisdiction. Article 27 of UN Charter prohibits UN from intervening in matters which are essentially within the domestic jurisdiction. ये कौन सी डॉक्ट्राइन है. एस्ट्राडा और स्टिम्पसन. कमेंट में बताइए. However, this does not apply to human right covenants. Human rights are treated as solemn international obligations. ये सिर्फ international obligations हैं, आपको ये याद रखना है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर द यूएन सिस्टम क्या क्या रहेंगी. इन 1948 द यूएन अडॉप्टेड द यूडीएचआर एज अ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन. यूडीएचआर को एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन की तरह डाला गया है. वही सबसे बड़ी हार हो जाती है मेरे हिसाब से कि बस तुम बाइंड नहीं कर रहे हो तो मतलब क्यों डाल रहे हो, बट क्या कर सकते हैं, डाला गया है. देयर आफ्टर फॉलोइंग बॉडीज़. लेकिन उसके बाद ये 3 बॉडीज़ बनी थी. इकोसॉक बना, थर्ड कमेटी बनी जीए की जो सोशल ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल इशूज़ में डील करती हैं. देन 6 कमिटीज़ विच इज़ लीगल. यूएनजीए लीगल ऑल्सो केम इन टू प्ले. यूएन की बॉडीज़ हैं कुछ जो हैं. यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1946 में जो बनी थी. इट ऑपरेटेड अंडर इकोसॉक. इट वॉज रिप्लेस्ड बाई यूएनएचआरसी. देन इज़ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल which replaced UNCHR. It was established as the subsidiary organ to GA. Function क्या क्या है. To investigate alleged breaches of HR by UN members and address thematic issues like freedom of expression, religious freedoms, women rights, LGBT rights, etc. It works closely with the OHCHR. ये कौन सा ऑफिस है आप लोग कमेंट में बताइए. इट इज़ एन ऑफिस. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर क्या है ये भी देख लेते हैं. 47 मेंबर्स इलेक्टेड, मेजॉरिटी वोट, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है. देन मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स. टेन्योर इज 3 years and not eligible for re-election after 2 consecutive terms. Must have at least 3 sessions per year. That is basically it. ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स भी लिखा गया. रिपोर्ट्स टू यूएन सेक्रेटरी जनरल. यही सेम ऑफिस है जो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था ना, सेम है दोनों. एचआरसी की एडवाइजरी कमेटी भी होती है. प्रोवाइड्स एक्सपर्टाइज टू यूएनएचआरसी एज रिक्वेस्टेड. इट फोकसेज ऑन स्टडीज एंड रिसर्च बेस्ड एडवाइस. इट्स एडवाइस इज लिमिटेड टू थीमेटिक इशूज pertaining to the mandate of the council, namely promotion and protection of human rights. Then CSW है, Commission of Status of Women. It reports to ECOSOC, which is the subsidiary of GA. It is the third committee of GA. Or not? Tell me, was I right here or not? मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया. ठीक है. Then we have the generations we have already studied. Now we have UDHR. Fundamental principle है universality of rights का. The UDHR proclaims a catalogue of basic civil and political rights, including the right to life, not to be held in slavery, not to be tortured, equal protection of law सबको मिलनी चाहिए,
गारंटीज़ हैं, प्रोसीजरल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मोमेंट एंड प्राइवेसी, मतलब फंडामेंटल राइट्स का ये सबसे बड़ा एक आर्टिकल है, इस बात का हमें ध्यान रखना है. देन आर्टिकल 1 unequivocally proclaims इनहेरेंट राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स. एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 29 में, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्रोविजन विच स्पीक्स ऑफ ड्यूटीज़. ठीक है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन बियरर्स ने भी इसको देखा था. इसकी रिकग्निशन केशवानंदा भारती में भी है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ऑलरेडी करी गई है. सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ UDHR कैन बी सेड टू हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एज वेल. UDHR को फॉलो करते हुए बहुत सारी बाइंडिंग ट्रीटीज़ भी बनाई गई है. 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जो इंडिया पे बाइंडिंग नहीं है, कन्वेंशन ऑफ स्टेटलेसनेस, ये कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, CEDAW, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन एज वेल. इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये 3-4 चीज़ों से इन्वॉल्व है. UDHR, ICCPR and ICSCR and 2 optional protocols to ICCPR. ICCPR and ICESCR broaden UDHR rights. There are some rights that are exclusive to all the 3 conventions as well. इंडिया ने दोनों साइन कर रखी हैं, ICCPR और ICSCR. सेकेंड प्रोटोकॉल ऑफ ICCPR डील्स विद अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, जो ऑफ कोर्स इंडिया साइन नहीं कर सकती. साइन कर भी दे तो रेटिफाई तो करेंगे ही नहीं. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ लेड्स डाउन सर्टेन बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस. इज द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड टू फुलफिल. राइट, रिस्पेक्ट करनी है ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट करनी है ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉजिटिव एक्शन लेना है फैसिलिटेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द लेवल्स ऑफ एनफोर्समेंट. क्या क्या है? डोमेस्टिक लेवल पे क्या रहेंगे? ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुली अप्लाई एज मेंशन्ड अबव द राइट्स. इफ डोमेस्टिक लॉ provides no remedy for abuses, parties may be able to resort to regional and international mechanisms for enforcing human rights. For example, ECHR, ACHPR, IACHR. मतलब देखिए, अगर लोकली आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स भी हैं. ये यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं. कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है इंटरनेशनली जैसे ECHR में था. हाउएवर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ हैं. HRC का ओन कंप्लेंट प्रोसीजर है. ठीक है, 1235 प्रोसीजर. UNHCR को पहले एग्जामिन करने का वो मौका देता है. ठीक है, और ये स्टेजेस में डिवाइडेड है. राइट, उसके बाद सेकंड में 1503 प्रोसीजर है. देन UNHRC स्पेशल रिपोर्टियर प्रोसीजर है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, ट्रीटी के मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं? ह्यूमन राइट्स कमेटी टू मॉनिटर इम्प्लीमेंट द कॉवेनेंट. एवरी स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स. कमेटीज़ बनी हुई हैं जिसमें रिपोर्ट्स भेजनी है आपको सब में बेसिकली. ठीक है, ये सारे ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं. राइट, ICJ का रोल क्या रहेगा? ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस फीचर्स प्रोमिनेंटली इन ICJ ओपिनियंस. इसराइल का वॉल केस था, उसमें ICJ ने बोला कि इसराइल ने ये सारी चीज़ें वायलेट करी हैं. आर्म्ड एक्टिविटीज़ इन कॉन्गो केस था जिसमें युगांडा ने वायलेट करी थी ये सारी, और अफ्रीकन चार्टर को भी वायलेट किया था. जेनोसाइड का केस है, बॉस्नियन हर्ज़ेगोविना वर्सेस सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो है शायद से. Serbia was violated the obligation to prevent genocide under the Genocide Convention at the same time as well. 2024 का advisory opinion है on Israel settlement in the West Bank. It constitutes violation under ICCPR, ICSCR and ICERD as well as core obligation under international humanitarian law at the same time. ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब भी केस आएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो don't forget to like, share and subscribe. Have a great day ahead. Thank you.